Hello dear students, Alamsa here for your typography class as the topic of today's lesson is history of computer. This is the starting of your this session and this is the first class. So we are going to start with the history of computer because this is very important to know what is the history, how the computer get in focus and present that we are using modern time there. Okay. So history of computer is going to start there. As you all know that the computer is an organized machine and it was not before as we find it now. ये पहले ऐसे नहीं थे जैसे हम इनको अभी देख रहे हैं. So just one second, let me tell. Okay, ready. So as we all know that the first computer was Abacus. Abacus was called as the first computerized or the computer machine that was used for calculation. It is used for calculation, doing calculation. Okay, as you must know also that the first person who made the first modern computer that was a Charles Babbage. That was a Charles Babbage. And the first computer that the Charles Babbage made that was difference engine. That was difference engine in 1821. 1821. But there was many kinds of problems of calculation because the calculation was not accurate in some of conditions. उस टाइम में भी जो ये मशीन बनाई गई थी चार्ल्स बेबेज द्वारा, जो कि एक मैथमेटिशियन थे. चार्ल्स बेबेज वाज द मैथमेटिशियन. उस टाइम में जो मशीन बनाई गई थी इसके पीछे जो रीज़न था वो था वेदर फोरकास्टिंग. And all the results were not accurate. For getting the more appropriate and better, or you can say the accurate results, the Charles Babbage again worked with this machine for 10 years and make the next one machine that is called analytical engine. That was analytical engine. Analytical engine. So, if you find out the answer, if you ask the question to anybody, name the first कंप्यूटर दैट वाज द बेस्ड ऑन द मॉडर्न कंप्यूटर, जो मॉडर्न कंप्यूटर के बेस पे बना हुआ सबसे पहला कंप्यूटर जो है उसमें नाम आता है एनालिटिकल इंजन का, जिसको हिंदी में बोलते हैं विश्लेषण इंजन. हिंदी में इसको बोलते हैं विश्लेषण इंजन. ओके, आगे बढ़ते हैं इसमें. यहाँ पर एक बात और मैं बताना चाहूँगा आपको. एज अ फादर ऑफ कंप्यूटर वी नो दैट फादर ऑफ कंप्यूटर हम बोलते हैं चार्ल्स बेबेज. वी नो द फादर ऑफ कंप्यूटर एज चार्ल्स बेबेज. इन द सेम वे हु इज द मदर ऑफ कंप्यूटर. फादर ऑफ कंप्यूटर, मदर ऑफ कंप्यूटर भी होगा जरूर कोई ना कोई. तो इसमें नाम आता है मैडम क्यूरी का. इसमें नाम आता है मैडम क्यूरी. ओके, ये दो नाम आप लोग याद रखेंगे. फादर ऑफ कंप्यूटर इज नोन who is the person that is known as the father of computer, that is Charles Babbage, and who is the lady that is known as the mother of computer, that is Madame Curie. Okay, now go for further for the next or the generation of computers. In generation of computer I will discuss about all the generations later, but first we will know about what is the difference engine and analytical engine. इसको क्या हुआ, what happened with it, just wait.
what happened with this machine? Next one. This is difference engine. That is a complicated portion of Charles Babbage. As I told you, the difference engine was made in 1821 है यहाँ पर 1821 था 1830. आप कुछ जगह पर सर्च करेंगे, हर जगह डेट थोड़ी अलग अलग है इसी डेट के आसपास. कहीं पर आप देखेंगे तो कहीं पर आपको 1921 भी मिल सकता है इसमें डिफरेंस इंजन का जो डेट है. दिस एडवांस कैलकुलेटर वॉज इन्वेंटेड टू प्रोड्यूस एल्गोरिथम और द लैग्रेंज टेबल्स यूज इन नेविगेशंस. जैसे मैंने बताया मौसम के बारे में जानने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसके एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं थे. द वैल्यू ऑफ नंबर्स वाज रिप्रेजेंटेड बाय द पोजीशंस ऑफ द toothed wheels marked with decimal numbers. And as a founding member of the Royal Astronomical Society, Babbage had seen a clear need to design and build a mechanical device that could automate long, tedious astronomical calculations. He began by writing a letter in 1822 to Sir Humphrey. देखिए यहाँ पर ये डेट क्लियर हुई ना, अभी आपको 1822 यहाँ दिया हुआ है और यहाँ 1832 दिया हुआ था, तो इसका मतलब यहाँ मिस्टेक थी. यहाँ पर होना चाहिए था आपका 1821. दिस इज़ द डेट दैट इज़ 1821. ये भी मैंने कहीं से लिया है, यह 1821 डेट. ओके, आपको क्लियर करना बहुत ज़रूरी था. To Sir Humphrey Davy, President of the Royal Society, about the possibility of automating the construction of the mathematical tables, especially logarithm tables for use in navigation, because he knew about this machine this machine or such types of the calculations can be do there. Because of that, there was a possibility of such kinds of calculations. चार्ल्स बेबेज को पता था कि हमारे साथ जो भी वो बना रहे हैं, मशीन जो बनाई इन्होंने, उसमें कुछ कम है. देयर आर फ्यू एरर्स विद दैट मशीन, बट ही न्यू अबाउट द मशीन वेल, एंड दे न्यू दैट अबाउट also that the such type of errors can be avoided and can be sorted out. और उसके बाद after this that machine when get renewed, such type of errors get be resolved. इस तरह की जो हमारी प्रॉब्लम्स थी उसको दूर किया जा सकता था, और उन्होंने ऐसा फिर बाद में किया भी. अभी हम आगे देखेंगे इसमें. For that, in this way, he then wrote a paper on the theoretical principles of the machinery for calculating tables, which he read to the society later that year. It won the Royal Society first gold medal in 1823. Please note it down that the Royal Society first गोल्ड मेडल इन 1823 जो उसको मिला था, वो किसके लिए मिला था? वो मिला था डिफरेंस इंजन के लिए, जो कि उन्होंने इस तरह की खोज की थी जिसके थ्रू वो एक लार्ज कैलकुलेशंस को, लैग्रेंज टेबल्स को या नेविगेशंस को फाइंड आउट कर सकते थे, या एस्ट्रोनॉमिकल जो चेंजेस हो रहे हैं यूनिवर्स में उसको समझ सकते थे. ओके, सो टेबल देन इन यूज ऑफन कंटेन एरर्स. मैंने जैसा बताया था, इस तरह की टेबल में कुछ एरर्स थी विच कुड बी लाइफ एंड डेथ मैटर, जिसकी वजह से जो छोटी छोटी चीज़ें आप जानते हैं ना, कभी कभी क्या था, छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत बड़े बड़े रीजन्स और बहुत बड़े फैक्टर्स उनकी वजह से हो सकते हैं. तो इस तरह से ये माना गया कि ये छोटी सी जो मिस्टेक है ये लाइफ एंड डेथ का मैटर बना सकती है. फॉर से दैट सी, फॉर एग्जाम्पल, अगर समुद्र में कोई नाविक है, ये समुद्र कोई जहाज़ लेकर उतरा तो इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. द बेबेज आर्ग्यूड दैट बाय ऑटोमेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ द टेबल्स, कि जो टेबल्स हैं ये खुद से ही सारे प्रोडक्शन कर सकते हैं, सेल्फ में खुद से सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं. ही कुड एश्योर देयर एक्यूरेसी, वो इसकी एक्यूरेसी के लेकर भी एश्योर थे. वो जानते थे कि इसमें जो एरर है, जैसे मैं आपको अभी फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बताया मैंने पहले कि वो एश्योर थे कि इस तरह की जो एरर्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, इनको सॉर्ट आउट किया जा सकता है और इस मशीन को एक्यूरेट बनाया जा सकता है. सो हैविंग गेन्ड support in the society for the difference engine, as he called it,
इन्होंने इसका नाम दिया था डिफरेंस इंजन। बेबेज नेक्स्ट टर्न to the British government to found development, obtaining one of the world's first government grants for research and technological development। तो पहला ऐसा परमिशन मिला जिसमें चार्ल्स बेबेज को, जो कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट या रिसर्च के लिए गवर्नमेंट की ओर से दिया हुआ पहला एक चांस था। इस तरह की कोई खोज पहले नहीं हुई थी। आगे हम इसमें बात करेंगे एनालिटिकल इंजन की, जिसके बारे में बताया कि ये जो मशीन बनाई गई थी एनालिटिकल इंजन, दैट वाज क्रिएटेड आफ्टर द डिफरेंस इंजन, और यू कैन से दैट एनालिटिकल इज जस्ट द अपडेटेड वर्जन ऑफ द डिफरेंस इंजन। While working on the difference engine, Babbage began to imagine ways to improve it. Which one to improve it? That was the improvement in the difference engine. Safely, he thought about generalizing its operation so that it could perform the other kinds of calculation. By the time the founding had run out in 1833, he had conceived of something far more revolutionary, a general purpose computing machine called the analytical engine. As I told you about, in 1831, after 10 years, 1821 में पहले मशीन बनी डिफरेंस इंजन। एक साल में उस पर रिसर्च वगैरह जो हुआ, उसके एक साल बाद में फिर क्या हुआ, 1823 में उन्होंने उस पर और नेक्स्ट मशीन को अपडेट करने के लिए, डेवलप करने के लिए टाइम मांगा उनसे, और 10 साल बाद में जस्ट आफ्टर 10 years द नेक्स्ट मशीन वाज डिज़ाइन और हैव बीन अपडेटेड एज द एनालिटिकल इंजन। ओके, इन द मशीन द एनालिटिकल इंजन वाज टू बी ए जनरल पर्पस fully programmed, controlled, automatic, mechanical, digital computer. It would be able to perform any calculation set before it. इसमें आप पहले से कोई भी कैलकुलेशन सेट कर दे तो वो कोई भी कैलकुलेशन कर सकती थी। Before Babbage, there is no evidence that anyone had ever conceived of such a device. बेबेज के माइंड में ही ये क्रिएशन थी, सिर्फ बेबेज ने इसको बनाया था। ऐसी मशीन को पहले कभी किसी ने नहीं बनाया था, ये पूरी हिस्ट्री में ऐसी कोई मशीन थी ही नहीं। एज द बेबेज इज सेइंग हियर, लेट अलोन अटेम्प्टेड टू बिल्ड वन, और अकेले ही बेबेज ने ये पूरी मशीन बनाई थी। द मशीन वॉज डिजाइन टू कंसिस्ट ऑफ 4 कंपोनेंट्स, द मिल, द स्टोर, द रीडर एंड द प्रिंटर। मिल के थ्रू क्या था, इसमें डाटा को एंटर किया जाता था, स्टोर में डाटा स्टोर होता था, रीडर के थ्रू डाटा को रीड किया जाता था मशीन के द्वारा, एंड प्रिंटर के थ्रू वो हमको आउटपुट देती थी। प्रिंटर का मतलब ये कि उसमें प्रिंटर ही थे। ये प्रिंटर का मतलब ये कि मशीन जो है प्रिंट करके आउटपुट प्रोवाइड कराती थी, चाहे वो इसकी स्क्रीन पर ही क्यों ना हो। These components are the essential components of every computer today। जैसा कि हम जानते हैं आज के समय भी ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। The mill, just like the input device, the store, like the storage device, the reader, like the output devices, and the printer, ये भी हमारे output device एक तरह की हैं। The mill was the calculating unit, जो कि calculating कर रहा है after doing input, analogous to the central processing unit (CPU) in a modern computer. To store was where data were held prior to processing, exactly analogous to memory and storage in today's computer. And the reader and the printer were the input and output devices. Reader क्या था, input device था, printer क्या था, एक output device था इसमें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं इसमें नेक्स्ट जो होंगे डेट वाइज और ईयर वाइज हम ये देखेंगे कौन कौन सी जनरेशन में किस किस तरह की मशीन्स का क्या कहते हैं, कौन कौन सी मशीनें थी जिनको कि फाइंड आउट किया गया था, या जिनको हम बोलते हैं कि इन्वेंट किया गया था। और इसके साथ ही मैं जनरेशन्स के बारे में बात करूंगा आपको। इसमें फर्स्ट जनरेशन है कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन है, थर्ड है, फोर्थ है, और इंडिया 4th जनरेशन तक की बात हुई है। आफ्टर दैट द 5th जनरेशन, जो कि हम बताएं नेक्स्ट कमिंग जनरेशन, जिसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही है। सो हैविंग अ गुड डे एंड ग्रेट डे फॉर टुडे।